Good morning, good afternoon, and good evening, dear students. So today we are going to start our chapter not. We are proceeding our topic further, that is light. Okay. So today we will discuss something more about the light. Okay. So let's take a quick revision what we talk about or what we discussed in our previous video. So let us review or let us check what we learned from our previous video. So in our previous video we talk about the TIR, total internal reflection, total internal reflection. So you know very well, this is a rarer medium and this is denser medium, and this is another. Now this is denser medium and this is rarer medium. Okay, what happened when a light rays comes from rarer medium to denser medium? It bends toward the normal. And what happened when a light rays comes from the denser to rare? It's shifted far away from the normal. So in these conditions we discussed, when we shifted the incident, this is an incident ray, this is incident ray. Okay, this is incident ray. So when a light rays comes from rare medium to denser medium, when we shifted incident ray or when we increase the angle of incident ray, so it's do not affect, means total internal reflection do not occur, because the normal is shifting toward the reflection angle or a refractive ray is towards shifting toward the normal. Okay, but when we are talking about a light rays is coming from denser medium to rarer medium, it's refracted ray is shifted far away from the normal. So if we increase the incidence angle, okay, so one conditions come when this reflected ray make an angle of 90 degree. Okay, so that incident value means that incident value which a refracted angle make 90 degree angle, so that incident ray is known as critical angle. Okay, and as we increase the value of critical angle, means after the critical angle, okay, when we increase this incidence value, so what happened? The TIR occur. Okay, means there is no means the incident rays do not enter the another medium. Okay, so it reflected back toward the same medium. So this phenomena is known as TIR. Okay, due to TIR, what happened? You know very well. Suppose it mirage happened. Okay, and we discuss something more like what we discuss. Mirage happened and diamond. Suppose that you have diamond and diamond is shining. So why diamond is shining? Due to TIR. Okay, so many things we discussed yesterday. So let's our topic proceed further. Okay, so dear student, let us know some example about which is directly related to the TIR. Like first is mirage. Mirage is an example of TIR. Second, shining of diamond. If someone asks to you why the diamond is shining, so your answer is because of TIR. Okay, the third is like if we are asking how this nowadays you are seeing that the net is coming to your home by the fiber line. Okay, so inside the fiber, okay, inside the fiber there is fiber. So the full name of fiber is optical fiber. So a glass is, suppose that this is a fiber line. Okay, inside this fiber line there is a glass. Okay, so glass is used to prepare this fiber line. So inside this fiber line TIR occur. Okay, so in optical fiber. Okay, and fourth one is endoscopy. What is endoscopy? What happened when a doctor wants to see the inside of our digestive system or inside of our organs? So what happened? Doctor do one thing. Doctor just insert the camera inside your buccal cavity and this esophagus and all. Okay, now the figure of your insides organ is displayed over the monitor. So
दिस व्हाट इज दिस प्रोसेस? दिस प्रोसेस इज नोन एज इंडोस्कोपी। ओके, डॉक्टर क्या करता है, आपके छोटा सा बिल्कुल कैमरा होता है, आपके जबड़े को लॉक कर देगा, ऐसे खोल देगा, उसके बाद कैमरा डालेगा यहाँ से मुंह से अंदर। ओके, फिर वो अंदर देखता है कि अंदर आपके क्या इन्फेक्शन हो रखा है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि कुछ चीज़ें अल्ट्रासाउंड पे क्लियर नहीं हो पाती, एक्सरे करते हैं तब भी क्लियर नहीं हो पाती, तो डॉक्टर बोलता है अब तो मुझे पेट के अंदर ही घुसना पड़ेगा। अंडरस्टूड? तो पेट के अंदर कैसे घुसेगा डॉक्टर? डॉक्टर क्या करता है, आपके पेट के अंदर कैमरा डाल देता है। ओके, सो उस कैमरे जो कैमरा प्रोसेस जो है उसको इंडोस्कोपी बोलते हैं, और वो कैमरा किस पे काम करता है? टोटल TIR पे। अंडरस्टूड? तो ये कुछ एग्जांपल थे। So dear student, now I'm going to rough. I hope you get it note down. So now we are going to discuss the scattering of light. The scattering of light. Firstly, I am writing some example, okay, which is directly related to the scattering of light. So now we are discussing the scattering of light. Okay. So there are some example like blue color of sky, blue color of sky. Second is blue color of sea, blue color of sea or oceans. Okay. Third one is red color of sun at dawn and dusk. Red color of sun at dawn and dusk. These are the new words for you. Okay, dawn means sunrise and dusk means sunset. White color of clouds, white colors of clouds, smoke and fog. ओके, आज इसके बारे में पढ़ेंगे ये क्यों होता है। ओके, तो ये जो चार चीज़ें हैं इसको नोट डाउन कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है। तो ये जो तीन है, फर्स्ट तीन है, ये जो फर्स्ट थ्री है, ये तो रेले स्कैटरिंग से होता है। ओके, रेले स्कैटरिंग, एक साइंटिस्ट थे रेले, और उन्होंने डिस्क्राइब किया था ये सारी चीज़ें। ओके, और जो ये है आपका लास्ट, वाइट कलर्स ऑफ क्लाउड, स्मोक एंड फॉग, ये होता है मी स्कैटरिंग। ओके, तो ये मी, अब हम देखेंगे रेले स्कैटरिंग क्या है और मी स्कैटरिंग क्या है। सो डियर स्टूडेंट, नाउ आई होप यू गेट इट नोट डाउन। नाउ आई एम गोइंग टू रफ। चलो, काफ़ी अच्छा लगा आप मेरी वीडियो लगातार देख रहे हैं। ठीक है, ये हमारे धरती देव हैं, अर्थ, धरती माता है, हमको कुछ नहीं आता है, ऐसे नहीं बोलना, ठीक है। हमको सब कुछ आता है। वो लोग थे जो बोलते थे हमको कुछ नहीं आता है, ठीक है। हम वो लोग हैं, हमको सब कुछ आता है। तो वो लोग हैं जो ऐसे बोलते धरती हमारी माता, हमको कुछ नहीं आता। वो लोग हैं जो नेगेटिव है। हम कौन से हैं? पॉजिटिव, हमको सब कुछ आता है, ठीक है। तो इसमें देखेंगे, धरती हमारी माता है और सूर्य हमारे देव हैं, ठीक है। दिस इज सन। अब आपको पता है इसके ऊपर एक एटमॉस्फेयर है ये आपके पास एटमॉस्फेयर है। ओके, ये एटमॉस्फेयर है। अब आपके पास एटमॉस्फेयर में क्या क्या चीज़ें हैं। ओके, अर्थ के ऊपर एक एटमॉस्फेयर है ना, इसके ऊपर क्या क्या चीज़ें हैं आपके पास। तो क्या क्या चीज़ें हैं? सबसे पहले तो आपको पता है नाइट्रोजन है। सबसे ज़्यादा मात्रा में आपके पास क्या है? नाइट्रोजन है। उसके बाद ऑक्सीजन है। तो आपको ये पता होना चाहिए जो नाइट्रोजन है वो सबसे ज़्यादा है, ओके, और ऑक्सीजन थोड़ा सा कम है। उसके बाद सबसे कम जो है वो ये है, और जो हीलियम, आर्गन वगैरह हैं। अंडरस्टूड? इसमें कुछ पार्टिकल्स भी हैं, डस्ट पार्टिकल्स, ठीक है। अब देखो भाई, देखो अब देखना पड़ेगा। यहाँ से लाइट आई, यहाँ से वाइट लाइट आई, ठीक है। वाइट लाइट आई, वाइट लाइट में आपको पता है कि सारे कलर हैं। कौन कौन से कलर हैं? प्योर। अब यहाँ पे से लाइट आई, लाइट अंदर आई, तो कभी सोचना, जैसे सपोज दैट फील्ड में तुम खड़े रहते हैं, अंडरस्टूड, फील्ड में खड़े रहते हैं। अभी तुम कुछ गलत काम कर रहे हैं फील्ड में, स्कूल के फील्ड में। अब उधर से PTI आया या उधर से मनीष सर आया,
तो तुम में से कुछ तो देख लेते हैं कुछ बच्चे, लेकिन वो तुम्हें बताते नहीं हैं कि सर आ रहे हैं। तो वो क्या करते हैं, थोड़ा अभी आया मैं ज़रा साइड हट जाता है, ठीक है। कुछ को पता नहीं रहता है, तो कुछ तो फिर कुछ देखते हैं कि मनीष सर आ रहे हैं तो क्या हो गया, आ रहे हैं तो क्या हो गया, देख लेंगे, झेल लेंगे। कुछ ऐसे भी होते हैं। तो कुछ तो बड़े ढीठ रहते हैं कि वहीं रहते हैं। तो उस कलर में से जो कुछ कलर आते हैं, तो जो ये वाले कलर हैं आपके पास, कौन से, ये कलर तो चालू कलर हैं। कैसे कलर हैं, क्लेवर, ओके, ये क्लेवर हैं। इन्होंने देखा लाइट आई, जैसे डस्ट पार्टिकल आपके पास आए, तो ये क्या हो गए, ये तो सॉरी, इनको मैं बोल सकता हूँ कि ये ढीठ कलर टाइप के हैं। तो ये क्या बोलते हैं, ये क्या करते हैं, ये आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। नहीं तो हम तो झेल लेंगे, हम तो चलेंगे, आगे चलेंगे, बिल्कुल चलेंगे, आगे चलेंगे, चलो जी, चलते हो आगे तो चलो, ओके। ब्लू कलर भागने की कोशिश करता है। ब्लू कलर भागने की कोशिश करेगा तो क्या करेगा, इधर भागेगा, इधर भागेगा, इधर भागेगा, इधर भागेगा, इधर भागेगा, इधर भागेगा, इधर भागेगा। तो सारी जगह क्या होगा, आपको ब्लू ही दिखाई देगा। तो इट मीन्स ब्लू कलर आपके पास क्या हो गया, स्कैटर हो गया। ब्लू कलर आपके पास क्या हो गया, स्कैटर हो गया। अंडरस्टूड। जैसे समझ रहे हो ना इस कॉन्सेप्ट को मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। यहाँ से व्हाइट लाइट आई, इसमें सारे कलर हैं। अंडरस्टूड। सारे कलर में से आपने देखा जो ये कलर है, ये तो ढीठ कलर है, इसको बोल सकते हैं क्या है, क्लेवर नहीं है। तो ये आपके ढीठ हो गए, थोड़ा सा कहना नहीं मानते। जो इन्होंने कहा क्या हो गया, हम तो बढ़ेंगे जी, आगे बढ़ो, ठीक है, धरती हमारी माता है और हमको उसी के पास जाना है, ठीक है। ये तो आगे बढ़ेंगे, लेकिन ये आगे बढ़ेंगे तो आओ साहब बढ़ो आगे, कोई दिक्कत थोड़ी है। लेकिन जो ब्लू कलर जैसे आपके पास आया, तो कभी कभी आप देखना, आपको आसमान पीला, इंडिगो और ब्लू दिखाई देता है, लेकिन ये नहीं दिखाई देता आपको, है ना। कभी कभी वायलेट भी, पीला भी हो जाता है आसमान, ऐसे भी देखना। कई बार इंडिगो भी हो जाता है, और ब्लू तो आपको दिखता ही है। तो ब्लू कलर सबसे ज़्यादा स्कैटर होता है, ब्लू कलर सबसे ज़्यादा स्कैटर होता है पार्टिकल से, ठीक है ना। तो क्या होता है, हमें और फिर हम अगर इसके अंदर से देख रहे हैं, ये हम हैं, हम देख रहे हैं तो ब्लू कलर ही दिख रहा है सारी तरफ, ओके। तो ये ध्यान देना, क्योंकि ब्लू कलर क्यों दिखता है, क्योंकि ब्लू कलर सबसे ज़्यादा स्कैटर हो रहा है। तो ये किसने डिफाइन किया था, ये कहते हैं रेले ने। रेले एक साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने क्या, उसका रिले स्कैटरिंग, इसलिए हम इसको किसको समझते हैं, रिले स्कैटरिंग। तो रिले स्कैटरिंग के अकॉर्डिंग जो स्कैटरिंग है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/λ⁴, ओके। मीन्स जिसकी वेवलेंथ, देखो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, स्कैटरिंग इज प्रोपोर्शनल टू 1/λ। तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, अगर आपके पास स्कैटरिंग बढ़ेगी तो लैम्डा घटेगा। तो अब इसमें से पूछा मुझे कि लैम्डा इसमें कम किसका है, लैम्डा इस पे लैम्डा किसका है कम, इस इधर वाली साइड का लैम्डा कम है ना, क्योंकि पिछली बार मैंने ऐसे लिखा था ये वेव ग्योर, तो कंफ्यूज नहीं होना। इस बार मैंने इस मैक्सिमम बताया था वेवलेंथ, और इसकी मिनिमम बताई थी वेवलेंथ। अभी मैंने उल्टा कर दिया, मैंने ऊपर से नीचे लिख दिया ये, तो ये टेंशन नहीं लेने की, ये क्या हो गया, ठीक है। तो रेड कलर की वेवलेंथ मैक्सिमम होगी, तो इट मीन्स ये क्या होगी, मैक्सिमम। वो लिखा है उल्टा ना, इससे कंफ्यूज नहीं होना। और ये क्या होगी, मिनिमम, ओके। तो इनकी वेवलेंथ क्या है, मिनिमम। तो ये देखो, ये जिसकी वेवलेंथ मिनिमम होगी उसकी स्कैटरिंग ज़्यादा होगी। अंडरस्टूड। तो इनमें से सबसे ज़्यादा कलर कौन फैलेगा, सबसे ज़्यादा ये फैलेगा, उसके बाद ये फैलेगा, उसके बाद ये फैलेगा, ये और ये सबसे कम, ओके। तो सबसे ढीठ कलर कौन है इसमें से, रेड कलर है, जो स्कैटरिंग नहीं होता। तो आई होप यू गेट दिस पॉइंट। सो डियर स्टूडेंट, इसको नोट डाउन कर लिया होगा आपने। इसमें कंफ्यूज नहीं होना। पिछली बार जब मैंने पढ़ाया था तो उसमें आर ऊपर लिखा था शायद से, तो वो मैक्सिमम, इसमें आर नीचे लिख दिया, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना कि पिछली बार सर ने ऊपर लिखा, अभी तो ऊपर लिखा तो कलर भी तो चेंज कर दिया है, ठीक है। उसमें इतनी बहस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम बहस कर रहे होंगे ना आपस में घर में, अपने दिमाग के ऊपर बहस जोर डाल रहे होंगे कि ऐसा हो गया, ठीक है। दूसरी चीज़ हमारे पास ये है, ये धरती माता है, ठीक है। और आपको पता है कि जो सन है, वो सन कैसे एक एलिप्टिकल पाथ में जाता है ना, ऐसे एलिप्टिकल पाथ में जाता है सन। जब सन मूवमेंट करेगा तो ऐसे, सॉरी मूवमेंट क्या, रोटेट करेगा जब, ठीक है ना, ऐसे एलिप्टिकल पाथ में करेगा। तो सपोज दैट यहाँ पे आपका सन है, ये क्या है, सूर्यदेव है, सूर्यदेव हमारे, ठीक है, ये भी सूर्यदेव है हमारे। तो सूर्यदेव ऐसे चल रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं सूर्यदेव, ऐसे 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 ऐसे,
ठीक है, तो यहाँ का तो हिसाब किताब छोड़ दो आप, ऐसे चल रहे सूर्यदेव, अंडरस्टूड। ये अर्थ है, धरती माता है। अब यहाँ पे देखो और यहाँ पे देखो, ये डिस्टेंस कैसी है, मैक्सिमम, मैक्सिमम, और ये डिस्टेंस कैसी है, मिनिमम, अंडरस्टूड। तो ध्यान देना, जब यहाँ से वाइट लाइट चलेगी, जब यहाँ से वाइट लाइट चलेगी तो सारे कलर एक साथ चलेंगे, वेब ग्योर, अंडरस्टूड। आपको पता है सारे कलर एक साथ चले तो इनमें से जो ऊपर वाले कलर हैं ये तो स्कैटर हो गए इधर उधर, ये तो छटक गए, ठीक है। हमारी आंखों तक सिर्फ क्या पहुंचा, रेड कलर। इसलिए जब सूर्य डस्क पे होता है और सूर्य डॉन पे होता है, ठीक है, उदय और अस्त, जब सूर्य उदय होता है तो हमें क्या दिखता है, ये रेड कलर का दिखता है। क्या दिखता है, रेड कलर का, क्योंकि यहाँ से निकले तो सारे कलर, विब ग्योर, सारे कलर निकले, लेकिन ये सारे कलर क्या हो गए, इधर उधर भाग गए, अंडरस्टूड, इधर उधर भाग गए। हमारी आंखों पे क्या पहुंचा, सिर्फ रेड कलर। तो इसलिए डॉन और डस्क के समय हमें सूर्य कैसा होता है, जो सन होता है वो कैसे दिखता है, रेड। लेकिन अभी डिस्टेंस मिनिमम है तो यहाँ से जितने भी कलर निकलेंगे तो वो इतने बिखर नहीं पाएंगे, इसलिए हमें इस समय शाइनिंग दिखता है या ब्राइटेस्ट दिखता है, ब्राइटेस्ट। ओके, सो आई होप यू गेट दिस पॉइंट। सो डियर स्टूडेंट, सो नाउ डियर स्टूडेंट्स, at dawn and dusk, okay, sunrise and sunset। सन रेड क्यों होता है, ओके, सन रेड क्यों होता है, तो ध्यान देना। सपोज दैट ये अर्थ है आपके पास, ओके, दिस इज अर्थ, और आपने देखा होगा जो सन है वो जब आप डॉन और डस्क में रहता है आपके पास, ओके, जिस समय डॉन रहता है और जिस समय डस्क रहता है, उस समय जो डिस्टेंस रहती है अर्थ से, ध्यान रखना क्या बोल रहा हूँ मैं, अर्थ से जो डिस्टेंस रहती है वो रहती है मैक्सिमम, मैक्सिमम, ओके, क्या रहती है डिस्टेंस, मैक्सिमम, ओके। लेकिन जब अर्थ के ठीक ऊपर आता है सन, ओके, तो उस समय जो डिस्टेंस रहती है वो रहती है मिनिमम, मिनिमम, अंडरस्टूड। तो ध्यान देना कि यहाँ से देखो, सन से, ये सन है ना, ये सन है आपके पास, ये सन है, तो इस समय निकलेगी तो इससे वाइट लाइट निकलेगी, पूरे कलर निकलेंगे विब योर, ओके, सारी लाइट निकलेगी, लेकिन इनकी स्कैटरिंग हो जाएगी, ओके, ये सारे क्या होंगे, स्कैटर हो जाएंगे, लेकिन आपकी जो आंखों पे पहुंचेगा वो कौन सा पहुंचेगा, रेड कलर, मतलब जो अर्थ में पहुंचेगा वो क्या पहुंचेगा, रेड कलर। सेम यहाँ पे है, ऐसे ही विब योर निकला, सारे मीन्स वाइट कलर निकला ना, वाइट कलर में सारे कलर रहते हैं, तो ये सारे तो स्कैटर हो जाएंगे आपके पास, और आपके आंखों पे क्या पहुंचेगा, रेड या ऑरेंज। तो इसलिए हमें डॉन एंड डस्क के समय सेट क्या होता है, सन क्या होता है, रेड कलर का दिखाई देता है। लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस मिनिमम है, तो जितनी भी लाइट आपके सन से निकलेगी वो वाइट लाइट वो सारी अर्थ में पहुंचेगी, अंडरस्टूड। तो इसमें क्या होगा, आपका सन ब्राइटेस्ट होगा, ओके, इसमें ब्राइटेस्ट होगा। तो ये आपके पास रीजन है क्यों डॉन और डस्क के समय सन रेड क्यों होता है, या सनराइज और सनसेट के समय सन का जो कलर है वो रेड क्यों होता है, क्यों, क्योंकि वो मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो बाकी सारे कलर स्कैटर हो जाते हैं और सिर्फ रेड कलर स्कैटर नहीं हो पाता है, ओके। सो आई होप यू गेट दिस पॉइंट। सो डियर स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू रेले आपको पता है जो स्कैटरिंग है वो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/λ⁴। तो इट मीन्स स्कैटरिंग बढ़ेगी तो वेवलेंथ घटेगी, स्कैटरिंग घटेगी तो वेवलेंथ बढ़ेगी। तो इसमें देखना जो आपके पास कलर है विब योर, तो इसकी मैक्सिमम वेवलेंथ होती है और इसकी मिनिमम वेवलेंथ होती है, अंडरस्टूड। तो वेवलेंथ जैसे हम ऊपर जाएंगे तो बढ़ेगी और नीचे आएंगे तो घटेगी, अंडरस्टूड। तो ये ध्यान देना कि रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, इसका मतलब उसकी स्कैटरिंग सबसे कम होगी। सो आई होप यू गेट दिस पॉइंट। सो डियर स्टूडेंट्स, एक चीज़ में और ध्यान देना, रेले स्कैटरिंग सिर्फ वहीं पे वैलिड होगी, ये हर जगह वैलिड नहीं होगी, अंडरस्टूड। हर चीज़ समझाने में रेले ही काम नहीं आएगा, तुम्हारे रेले का प्रिंसिपल ही काम नहीं आएगा। एक चीज़ ध्यान देना,
इसमें जो पार्टिकल्स हैं, इसमें जो ये पार्टिकल्स हैं जहाँ ये स्कैटर हो रहा है, ये कलर जहाँ स्कैटर हो रही है, ये पार्टिकल वेवलेंथ के अकॉर्डिंग बहुत ही छोटे होंगे। अंडरस्टूड? व्हेन द पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू वेवलेंथ। ओके, तो लिख देना रेले स्कैटरिंग इज वैलिड ओनली, चलो लिखो, इसमें जगह नहीं है, रेले स्कैटरिंग इज वैलिड ओनली व्हेन द साइज ऑफ पार्टिकल इज वेरी स्मॉल as comparison to wavelength. Okay, when the size of particle is very small as compared to wavelength. Okay, so I hope you get this point. So dear student, I hope you get this point or you note it down on your notebook or notes book. Now we will discuss the Mie scattering. ओके, तो मी स्कैटरिंग कब होती है? जब पार्टिकल्स थोड़े से बड़े हो जाते हैं। अंडरस्टूड? जब पार्टिकल्स जैसे बड़े हो जाते हैं तो मी स्कैटरिंग होती है। ओके, तो इसमें लिखेंगे इट इज वैलिड ओनली व्हेन, लिखोगे वैलिड ओनली व्हेन द पार्टिकल्स इज टू बिग एज compared to wavelength. Okay, so please note it down. So dear students, जैसे आपके पास बादल होते हैं ना, ये बादल आपका क्लाउड। ओके, तो ये बहुत बड़ा पार्टिकल है, एक पार्टिकल है, ग्रुप ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स है, तो ये बहुत बड़ा पार्टिकल है। तो इसमें मी स्कैटरिंग होगी। मी स्कैटरिंग होगी मतलब इसमें वाइट लाइट जितनी भी पड़ेगी तो वो सेम हमारी आंखों पे पूरी रिफ्लेक्ट होके आएगी। तो इसलिए इसका कलर हमें क्या दिखाई देता है? वाइट। अंडरस्टूड? तो मी अकॉर्डिंग टू मी स्कैटरिंग कि जब पार्टिकल बहुत बड़ा हो तो देयर इज नो स्कैटरिंग। ओके, नो स्कैटरिंग, वहाँ पे स्कैटरिंग नहीं होगी। ओके, तो ये चीज़ ध्यान रखना, मी स्कैटरिंग के अकॉर्डिंग स्कैटरिंग नहीं होगी जब पार्टिकल बहुत ही बड़ा हो। तो इसलिए क्लाउड्स हमें वाइट दिखते हैं और फॉग हमें वाइट दिखता है और स्मोक हमें वाइट दिखता है। ओके, तो ये सारी चीज़ें वाइट इसलिए दिखती है क्योंकि मी स्कैटरिंग होती है। अंडरस्टूड? तो आई होप यू गेट दिस पॉइंट। सो डियर स्टूडेंट, एक चीज़ और ध्यान देना, इसमें दो तरीके की स्कैटरिंग होती है आपके पास टोटली ना। रमन ने समझाया था, सीवी रमन ने दो तरीके की स्कैटरिंग समझाई थी। तो एक तो समझाई थी इलास्टिक स्कैटरिंग, यानी मार्कर भी नहीं लिख रहा है। सो एक इलास्टिक होती है और एक इनइलास्टिक होती है, इन इलास्टिक स्कैटरिंग। ओके, तो इलास्टिक में क्या होता है? सपोज दैट आपके पास कोई लाइट आई, ये लाइट रेज आई, अब ये अगर किसी से टकराई है, ओके, किसी से, स्कैटरिंग का मतलब ये तो कोई पार्टिकल से टकरा रही है, जहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही छोटे हैं एज कम्पेयर टू वेवलेंथ। ये टकरा रहे होंगे तो ये ऐसे टकरा के वापस चले जाएंगे, कहीं ऐसे टकराते रहेंगे। तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी और इसकी जो एनर्जी होगी, अंडरस्टूड? इसकी जो फ्रीक्वेंसी और एनर्जी होगी और इसकी जो फ्रीक्वेंसी और एनर्जी होगी, ये हमेशा क्या होगी? बराबर होगी। अंडरस्टूड? लेकिन इनमें से 10 मिलियन में से एक फोटोन इसको फॉलो नहीं करेगा। मीन्स टकराने के बाद और जो इसकी फ्रीक्वेंसी और एनर्जी होगी, इसकी जो फ्रीक्वेंसी और एनर्जी होगी वो सेम नहीं होगी। अंडरस्टूड? ये सेम नहीं होगी। तो इस जो इनइलास्टिक है ये सीवी रमन ने समझाया था। ओके, ये सीवी रमन ने समझाया था। तो ये सीवी रमन का बेसिक कॉन्सेप्ट था कि जो फ्रीक्वेंसी होती है वो चेंज होती है, जबकि रिले और मी इन्होंने बताया था कि फ्रीक्वेंसी सेम होती है, और इन्होंने बताया था कि फ्रीक्वेंसी सेम नहीं होती। किसमें से? 10 मिलियन में से एक फोटोन का। सो डियर स्टूडेंट्स, नाउ आई एम गोइंग टू रफ। ये समझ में आ गया होगा आपको, ऐसी आपसे अपेक्षा रखता हूँ।
वैसे ज़्यादा अपेक्षा रखनी भी ठीक नहीं है, पढ़ते आप हैं नहीं कभी। एक कोई बंदा है जो मेरी वीडियो को डिसलाइक कर रहा है, कौन है वो आप अपना कमेंट कर देना, ठीक है। कोई बंदा है जो डिसलाइक कर रहा है, देख भी रहा है, ज्ञान भी ले रहा है और नापसंद भी कर रहा है, ये तो गलत बात है यार। सो सपोज दैट आपके पास एक, अरे यार बहुत बड़ा हो गया सब। ये वाटर ड्रॉपलेट्स आपके पास सपोज इट, ठीक है। ये क्या है, वाटर ड्रॉपलेट्स। और ध्यान रखना कि जो वाटर ड्रॉपलेट्स है वो आपके पास प्रिज्म की जैसे एक्ट करती है, ओके। वाटर ड्रॉपलेट्स एक्ट्स एज ए प्रिज्म, ओके। सो ध्यान देना, अभी ये स्कैटरिंग हटा दो, अभी यहाँ पे रेनबो आ जाएगा। अभी यार ये भी ऐसे ही लिख रहा है, एक मिनट इसमें इनके डालते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, ये आपके पास वाटर ड्रॉपलेट्स हैं और वाटर ड्रॉपलेट्स जो होती है आपके पास वो एक्ट एज ए प्रिज्म। तो वाटर ड्रॉपलेट्स में 3 प्रोसेस होती हैं आपके पास, ठीक है। अब ये एक तो आपके पास डिस्पर्जन होता है, ओके। एक आपके पास TIR होता है और एक आपके पास रिफ्रैक्शन होता है। जब ये 3 प्रोसेस होती हैं तब जाके आपका रेनबो बनता है, ओके। सो डिस्पर्जन, आप ये तो 2 चीज़ तो आप समझ गए, TIR और रिफ्रैक्शन। एक चीज़ आपको थोड़ा सा परेशान कर रही होगी, डिस्पर्जन। डिस्पर्जन मीन्स होता है स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट, ओके, WL वाइट लाइट इनटू 7 कलर, ओके। जब कोई वाइट लाइट 7 कलर में टूटती है तो उसी प्रोसेस को क्या बोलता हूँ मैं, डिस्पर्जन। तो रेनबो में बेसिकली 3 प्रोसेस होती है, क्या होती है, डिस्पर्जन, TIR और रिफ्रैक्शन। तो ये सपोज इट्स सूर्यदेव है, ओके। यहाँ से लाइट आई, ये लाइट जैसे ही आपके पड़ी तो ये लाइट सीधे आपका डिस्पर्जन हो गया, ओके। तो यहाँ पे रेड हो गया, यहाँ पे वायलेट, ओके। ऐसे ये टूट गई, अंडरस्टूड। तो मैं यहाँ पे सिर्फ 2 ही बना रहा हूँ, ओके। तो सबसे पहले क्या हुआ, डिस्पर्जन हुआ। उसके बाद जैसे ही आपके पास डिस्पर्जन हुआ तो ये टकराने के बाद इधर से इधर जाएगी, ओके। इधर जाने के बाद ये जो रेड लाइट है आपके पास, रेड लाइट ही आपके पास इधर जाएगी, अंडरस्टूड। उसके बाद जब ये बाहर निकलेगी, ओके, तो यहीं पे जैसे आप देखते हो, अगर सपोज आप यहाँ से देख रहे हो, यहाँ पे आप देख रहे हो तो आपको क्या दिखेगा, वायलेट और रेड, ओके। तो ये आपको कलर दिखने स्टार्ट हो जाते हैं। सो डियर स्टूडेंट, इसमें ध्यान देना, सन ये है आपका, रेनबो ये बन रहा है, आपको रेनबो बन रहा है, ठीक है। ये रेनबो बन रहा है, तो आप कहाँ पे, बीच में, ठीक है। तो ध्यान देना, अगर सपोजिट इस साइड आपका रेनबो बनता है तो ठीक उसके अपोजिट साइड क्या होगा, सन होगा, और आप बीच में रहेंगे। हमेशा ध्यान देना, अगर आप इधर रेनबो बन रहा है तो आपका, इसका मतलब सन कहाँ होगा, इधर होगा। अगर इधर रेनबो बन रहा है तो सन कहाँ होगा, इधर होगा, ठीक आमने सामने, अंडरस्टूड। और आप कहाँ पे होंगे, बीच से, ठीक है। अगर सन 12 बज गई और सन यहाँ पे आ गया, अब इस पर लाइट पड़ेगी, रिफ्रैक्शन हुआ, तो इसका जो भी ये कलर होगा, डिस्पर्जन जो होगा, ये कलर जो टूटेंगे, ये कहाँ पे, यहाँ पे विबग्योर बनेगा, विबग्योर। और ये विबग्योर कहाँ बनेगा, धरती पे। और धरती पे विबग्योर आप देख सकते हैं, तो आप नहीं देख सकते। तो एट 12 PM रेनबो फॉर्मेशन इज नॉट पॉसिबल, ओके। तो ये लिख सकते हैं आप अपने नॉलेज के लिए, अंडरस्टूड। और इसमें दूसरी चीज़ें क्या सीखी थी हमने, देखो यहाँ पे TIR भी हो रहा है। TIR कैसे हो रहा, क्योंकि देखो ये तो एयर है, मीन्स ये रेयरर मीडियम है, इसको ऐसे बोल दो, ये रेयरर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है, ओके। अभी देखो, जब रेयरर से डेंसर जाएगी तो यहाँ पे क्या होगा, रिफ्रैक्शन, अंडरस्टूड, क्लियर आएगा इसमें। और अभी देखो, इस मीडियम से इसी मीडियम में जा रही है, टकराने के बाद इस मीडियम से इसी मीडियम में जा रही है। जब लाइट रेज आती है और उसी मीडियम में जाती है तो इसमें रिफ्लेक्शन भी होता है, तो रिफ्लेक्शन तो हो ही रहा है, अंडरस्टूड। और ध्यान देना, अब ये डेंसर मीडियम है, अब लाइट रेज बाहर आ रही है डेंसर मीडियम से फिर रेयरर मीडियम में,
तो यहाँ पे क्या होगा, TIR भी होगा। अंडरस्टूड। तो ध्यान देना, यहाँ पे डिस्पर्सन भी होता है, TIR भी होता है और रिफ्रैक्शन भी होता है। सो डियर स्टूडेंट, इसमें ध्यान देना, ये फॉर्मेशन मत लिखो, फॉर्मेशन तो होगा ही ना। कांट बी सीन ऐसे लिख सकते हो, एट 12 PM रेनबो कैन नॉट बी सीन। आप देख ही नहीं सकते, ओके, क्योंकि वो धरती पे बनेगा ना, नीचे अर्थ में बनेगा, तो अर्थ में कैसे देख पाओगे। सो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे ध्यान देना, तो ये जो रेनबो आपको दिखेगा, तो ये रेनबो दिखेगा आपको, इसको बोलते हैं प्राइमरी रेनबो। ध्यान देना, प्राइमरी रेनबो है ये, ठीक है, ये प्राइमरी रेनबो। लेकिन अगर सपोज दैट इससे फिर रिफ्रैक्शन हो गया, इससे फिर रिफ्रैक्शन हो गया, तो देखो रिफ्रैक्शन होगा तो ओके, तो इस समय आपके पास वायलेट ऊपर आ जाएगा और रेड नीचे आ जाएगा। अभी देखो, अभी जब यहां पे आप देख रहे थे तो रेड ऊपर था और वायलेट नीचे था। अंडरस्टूड। जो इसकी फॉर्मेशन थी वो ऐसे थी, ओके। और अभी क्या हो जाएगी फॉर्मेशन, अंडरस्टूड। तो जो ये फॉर्मेशन है इसको बोलते हैं क्या, जो पहला बना इसको बोलते हैं प्राइमरी रेनबो। क्या बोलते हैं, प्राइमरी रेनबो। और जो ये वाली फॉर्मेशन इसको बोलते हैं सेकेंडरी रेनबो, सेकेंडरी रेनबो। तो ये कभी कभी बनता है, कभी नहीं बनता, लेकिन ध्यान देना जो प्राइमरी रेनबो होगा ये थोड़ा सा क्या होगा, डार्क होगा, आपको कलर सारे एक साथ अच्छे से दिखेंगे। जो सेकेंडरी होगा ये थोड़ा सा लाइट होगा, हल्का सा फीका होगा, ओके। तो ये प्रोसेस होती है। देखो तो यहाँ पे सेकेंडरी रेनबो में ध्यान देना कि ये प्रोसेस किस तरीके से हो रही है, ठीक है। तो ये दिमाग में आप बिठा के रखना। सो डियर स्टूडेंट, ध्यान देना, जो आपके पास प्राइमरी रेनबो है, ये 1 डिग्री लिखा था, इसका मतलब प्राइमरी, ठीक है। जो आपके पास प्राइमरी रेनबो है उसमें दो बार तो आपके पास रिफ्रैक्शन होगा और एक बार आपके पास TIR होगा। ध्यान देना, जो प्राइमरी रेनबो है उसमें 2 बार रिफ्रैक्शन हुआ ना, 2 बार रिफ्रैक्शन, एक बार रिफ्रैक्शन हुआ और एक बार रिफ्रैक्शन यहाँ हुआ। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, ध्यान से समझो। जो प्राइमरी रेनबो है उस पर 2 बार रिफ्रैक्शन होगा, एक बार रिफ्रैक्शन तो यहाँ पे हुआ और एक बार जब यहाँ से ये बाहर आएगा तब रिफ्रैक्शन होगा, ठीक है। लेकिन ध्यान देना, जो सेकेंडरी रेनबो होगा उसमें रिफ्रैक्शन तो 2 ही बार होगा, लेकिन TIR भी 2 बार होगा। अंडरस्टूड। तो ये चीज़ें ध्यान रखना। सेकेंडरी रेनबो कब बनता है, जब TIR 2 बार होगा, और प्राइमरी रेनबो कब बनेगा, जब TIR 1 बार होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए यहीं पे बाइंड अप करते हैं, और इन चीज़ों को आप नोट करना और उसको अच्छे से समझना। और अगर सपोजेट आपके समझ में कोई चीज़ नहीं आएगी तो मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स में बताना क्या चीज़ आपकी समझ में नहीं आई, अगर कुछ डाउट होगा। वैसे तो मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको, फिर भी अगर होगा तो देखेंगे उसको। एक डाउट था, किसी बच्चे का मुझे क्वेश्चन किया था कि सर जब लाल रंग हमारी आंखों पे उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है, तो लाल कलर अच्छा होता है, तो बसों का कलर लाल क्यों नहीं कर देते हैं, जो स्कूल बस होती है उसका पीला क्यों करते हैं, ठीक है ना। तो ये सस्पेंस हम बनाए रखेंगे, इसको हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि तब तुमने अगली वीडियो देखनी नहीं है, ठीक है। ओके, बाय बाय, टाटा।